Hello friends, welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. If you have read today's newspaper, then a very important news is all around the media. The Supreme Court has introduced scheduled caste and scheduled tribe reservation in its staff recruitment. Insofar as reservation in Supreme Court is concerned, this is for the first time that something like this has happened. When the Supreme Court made direct appointment and promotion of its own staff on the basis of scheduled caste and scheduled tribes reservation allow की है. Now, this is a groundbreaking news. I'm sure this will have far reaching repercussions on the reservation policy of India. ऐसे टॉपिक्स सही मायनों में इंपॉर्टेंट होते हैं. दिस गोज अ लॉन्ग वे इन कि हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है, किस लेवल तक जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स को, ऐसे क्वेश्चंस को जाने नहीं देता. सो जस्ट स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स. मैं तुम्हें रिजर्वेशन पॉलिसी एटलीस्ट इन सो फार एज ये वाला टॉपिक पूरी तरह से पढ़ा दूंगा. यू विल नॉट हैव टू स्टडी फ्रॉम एनी अदर सोर्स. सो बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड दिस. बट उससे पहले कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स. एंड दैट अनाउंसमेंट इज दैट सबसे पहले 5th and 6th जुलाई को अपने कैलेंडर्स मार्क कर लेना. This is the Unacademy UPSC Summit where famous personalities, mentors, rankers will have real heart-to-heart talk with you. They will share real strategy and real inspiration. So watch out for all the best of the best educators, all the rankers. वो अपने मन की, अपने एक्सपीरियंस की तुम्हारे साथ साझा करेंगे. यू शुड रियली अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ चैंपियन इन लाइफ. ऑल्सो तुम में से जो ऑप्शनल्स को अटेंड करना चाहते हैं एंड दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग PSI एज एन ऑप्शनल, प्लीज वेट फॉर मी. End of July or the first week of August में I will start my PSI or optional. Use my code SEDLIVE to unlock huge discounts at Unacademy and I'll be very very happy to teach you. आज की breaking news around this news है. So this is the first. So anything that is first is bound to be having a very important role to play in your examination. Schedule caste, schedule tribe reservation हो रहा है staff recruitment में. Before you start trying to memorize things and before you start missing out the details which are really pertinent to this topic, कुछ बातें याद रखना. सबसे important बात है that we are talking about reservation in Supreme Court. We are talking about the staff of Supreme Court. Please understand a very important difference. We are talking of the staff of Supreme Court. जो स्टाफ क्लरिकल स्टाफ होगा, राइट, जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स में से आए, प्रमोशंस में आए, वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट रेफरिंग टू जजेस. प्लीज डोंट मिक्स द टू. यहाँ पे जजेस की शेड्यूल क्या, शेड्यूल ट्राइब्स फॉर दैट मैटर एनी रिजर्वेशन की बात नहीं हुई है. मेक श्योर दैट यू मेक अ नोट ऑफ इट, अदरवाइज यू विल गो ऑन अ वेरी डिफरेंट टैंजेंट देन व्हाट एक्चुअली यू सपोज टू. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दिस पोस्ट जैसे रजिस्ट्रार्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, उनके लिए है, नॉट जजेस. Now this is provided under Article 145 of the Constitution that the Honorable Supreme Court has a power to decide upon the recruitment of its own staff. ये allowed होता है. Read Article 145, you will be able to find it out. लेकिन यहाँ पे जजेस की किसी भी तरह से रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही. सो इन अ वे इट्स जस्ट लाइक अनदर जॉब. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होती है और रिजर्वेशन होती है, वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी फॉर द फर्स्ट टाइम हो रही है. तो चीफ जस्टिस गवाई ने पहली बार ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है. नाउ दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू स्टेट गवर्नमेंट, we are going to go and abide by the same policy. So what is reservation based on? Reservation is not an exception to equality. समझने की कोशिश करो. It is not an exception to equality. It is a concept, it is a facet of equality. Let me explain this to you. तो थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो. Imagine कि there are two people or two communities who are exactly at the same level. तो जब इनका सोशल डेवलपमेंट हो रहा होगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टेप अप द लैडर ऑफ सक्सेस और प्रमोशंस और व्हाट नॉट. लेकिन हकीकत ऐसा नहीं हुआ है. इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो ऐसी बहुत सारे कम्युनिटीज है, जैसे द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस,
who are considered कि they do not have the same playing field, उनको level playing field नहीं है. The founding fathers of the constitution at that time, the parliament of India today, the government of the day today, they believe कि अगर बाकी सब यहाँ है तो the socially educationally backward classes, the socially SEBCs जिन्हें बोला जाता है, the other backward classes, also the scheduled caste and scheduled tribe वो नीचे हैं, they are at a position of disadvantage. तो वो जो पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज है, इन द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली हुई है. और क्योंकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली हुई है, दे नीड टू बी गिवन अ बिट ऑफ हेल्प. वो जो बिट ऑफ हेल्प है, वो जो अफर्मेटिव एक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्वेशन. सो रिजर्वेशन इज ब्रिंगिंग देम टू द लेवल प्लेइंग फील्ड vis-a-vis the rest of the people or the rest of the communities who were apparently ahead of the curve. So in a way, you are not making an exception to equality, you are leading to equality. So reservation or any such affirmative action is integral to equality. A very often asked question, कि article 15 subclause 4, which is a definition wherein the reservation is allowed, or for that matter article 16 subclause 4, very often asked question यूपीएससी में ये होता है कि क्या ये exception to equality है. तो remember that say that no, it is not an exception, मतलब ये against equality नहीं है, it is integral to equality. This is actually leading up to equality. It is causing, बड़ा अच्छा word है, that it leads to what is called as level playing field. So this is a very important concept, and reservation should not be taken as an exception but as a facet of equality. So in the news that we are reading now, 15% for scheduled caste and 7.5% for scheduled tribes and promotions has also been provided in this. So it is actually on the same lines as the central government employment or central government jobs are concerned. In that sense, you will never be asked those kinds of facts and figures, but आपको ये समझना पड़ेगा कि what is the concept behind all of this part. So एक case हुआ था, and that was a very famous case called as M. Nagaraj versus Union of India 2006. Those who have studied from me, we deal with this case in huge detail. Story कुछ इस तरह से गई थी in terms of chronological order. Just picture this. 1992-93 was a case which जिसको इंदिरा सानी केस बोला जाता है. इंदिरा सानी केस को मंडल केस बोलते हैं. मंडल केस वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इंदिरा सानी केस ने मंडल कमीशन, which was the second backward classes commission report या फिर second backward classes commission, उनकी रिपोर्ट को चैलेंज किया था इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. एक 9 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठा एंड इट अपहेल्ड, इट डिसाइडेड, इट वैलिडेटेड कि जो मंडल कमीशन यानी कि जो सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने 27% एडिशनल रिजर्वेशन दिया है टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. उसके तुरंत उसी जजमेंट में देयर वर अ बंच ऑफ थिंग्स जो ओरिजिनली नहीं सोची गई थी. थिंग्स लाइक क्रीमी लेयर, ये बात बोली गई कि there are people who are already much ahead socially and in position in terms of occupying constitutional posts etc. उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा. उसको एक नाम दिया गया क्रीमी लेयर. ये भी बात बोली गई कि प्रमोशंस में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंदिरा सानी, प्रमोशंस में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ओनली इनिशियल अपॉइंटमेंट में दिया जा सकता है. मेनी सच थिंग्स केम. Parliament in its own wisdom did not like this judgment completely, at least in toto they didn't accept this. तो उन्होंने बहुत सारी amendments की later on 75th, 82nd and so on and so forth, जिसमें उन्होंने इंदिरा सानी जजमेंट के ये जो so called थोड़े बहुत provisions थे उनको bypass किया. So they said कि we are going to bring in certain amendments जो कि ये bypass कर देंगे. For instance, promotions में भी हम reservation देना चाहते हैं. ये जब अमेंडमेंट्स आया तो उसको चैलेंज किया गया इन दिस फेमस केस कॉल्ड एज एम नागराज केस. ये ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते. एम नागराज केस में फिर से इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया कि माय लॉर्ड,
हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने जो इंदिरा सानी केस में बोला था उसको बाईपास करने के लिए पार्लियामेंट ने ये सारी अमेंडमेंट्स कर दिए, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी कैन नॉट टेक अवे व्हाट पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड बिकॉज पार्लियामेंट इज वेल विद इन इट्स पावर टू डिसाइड सच थिंग्स, लेकिन हम कुछ कंडीशंस रखेंगे एंड दोज कंडीशंस वर, प्लीज रिमेंबर दिस, नंबर वन, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस होना चाहिए. So before you start giving reservations, then make sure कि there should be an objective standardization of backwardness कि कितनी backwardness है. दूसरी बात, तुम्हें ये बात पता नहीं है कि inadequate representation, one of the reasons जिसके basis पर reservation दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि XYZ reasons की वजह से scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes को इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है एट द लेवल ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ये वर्ड्स याद रखना. एंड नंबर 3, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बोला जाता है, विच एक्चुअली इमर्जेस फ्रॉम आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यू विल डू वेल फॉर योरसेल्फ, यू विल एक्चुअली कम अक्रॉस. आप एग्जाम में ये 3 वर्ड्स लिख दोगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो. सो नंबर 1 याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि बैकवर्डनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी खराब नहीं होनी चाहिए, which actually emerges from Article 335. After this video, make sure that you open Article 335, just spend 30 seconds and you'll understand what I'm trying to tell you. It says that the claims of scheduled castes and scheduled tribes shall always consider the administrative efficiency are not spoiled. It was later in 2018 that is उन्होंने जर्नैल सिंह केस में बैकवर्डनेस वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था, जिसमें ये बात बोली गई थी कि एम नागराज ने क्या बोला, थिंक स्टे विद मी, राइट, स्टे विद मी, मेरे साथ रहो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अभी अभी मैंने क्या बोला, एम नागराज केस ने बैकवर्डनेस की बात की, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात की और एफिशिएंसी की. जर्नैल सिंह केस में 2018 में बैकवर्डनेस वाले कॉन्सेप्ट को, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस था, कि एम नागराज केस में बोला था जब तक हमारे पास ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स ऑफ बैकवर्डनेस नहीं होगा ना, यू कैन नॉट गिव रिजर्वेशन एटलीस्ट इन सो फार एज प्रमोशन इज कंसर्न. उस वाले कॉन्सेप्ट को जर्नैल सिंह केस ने हटा दिया. बाकी दोनों अभी भी है, तो 3 में से 2 रह गए. वो बैकवर्डनेस वाला प्रोविजन को हटा दिया गया कि वी नीड नॉट डू दैट ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ बैकवर्डनेस. Any which ways, I hope you realize कि reservation as a policy is an affirmative policy. It is in the spirit of equality, no doubt about it. But ऐसे ना सोचा जाए कि it is not under judicial review. Yeah, the court is not keeping an eye on that. You can do all the reservation that you wish to. लेकिन it should be within the 4 corner walls of the constitutional principles. So जर्नैल सिंह केस में ये हो गया. So in a way, ये सब कुछ होने के बाद आज ये जो न्यूज आई है दैट द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज डिसाइडेड कि उनके स्टाफ में SC/ST बेसिस पर रिजर्वेशन होगा. दिस इज गोइंग टू ओपन द डोर्स टू सेवरल अदर अथॉरिटीज टू ओपन देयर डोर्स. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग नॉटविथस्टैंडिंग, यू नेवर नो कि कहां तक जाने वाला है. वी डोंट नो दिस. सो is it a step towards more socially responsive and inclusive public administration? This is what you want to tell me. तो comment section में लिखो कि are you in favor of this or are you against this, and if you are in favor why, and if you are not in favor why. तो अपने mental attitude को और aptitude को match करो, put that in language. सोचो कि क्वेश्चन ही आ रहा है तो आप इसको कैसे आंसर दोगे. So amazing question and an amazing news for all of you. एक अगर तुम ध्यान से देख ही रहे हो तो एक एक क्वेश्चन करके दिखाई दो मुझे. According to Supreme Court judgment in M. Nagaraj versus Union of India 2006, which of the following conditions must be satisfied before granting reservation and promotion to scheduled caste, scheduled tribe? A, B, C, D. Choices तुम्हारे सामने हैं. Go ahead and answer. I'll be waiting for your answer. Hurry up. जल्दी से आंसर देना. Alright, so I'll wait for another 15 seconds ताकि I give you an opportunity. और मैं देखना चाहूँगा कि तुम कमेंट्स में इसको आंसर देते हो या नहीं देते हो. So answer is proof of backwardness.
ये अभी देखा, मैंने बताया था क्वांटिफाइबल डेटा शोइंग इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मैंने तुम्हें 1 2 3 याद करवाया था। रिजर्वेशन मस्ट बी प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो आंसर इज 1 2 एंड 3 ओनली, आंसर इज ए। सो आई होप यू नोटिस कि हम लोगों ने 15-20 मिनट के भी ये वीडियो नहीं किया होगा, बट अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो देन विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड देयर विल बी नो रीजन व्हाई यू वोंट बी एबल टू आंसर अ टफ एग्जाम। So make sure that you watch this video once more, और फिर मेरी क्लास में आ जाना, we'll deal with this in far more detail. So I hope you have understood this is about the concept of reservation in the Supreme Court. Make sure that you use my code SIDLIVE, SIDLIVE, to join us on Unacademy, and there are many offers, and also don't forget to join us on the UPSC Summit. Also those who want to join optional, please feel free. Use my code SIDLIVE, don't forget this. I'll be very, very happy to teach you in the next video. The words of Unacademy. Let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.